Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today we are going to starting the new chapter, that is light. So basically we are studying all about light. What is light, how it behaves, and which phenomena it is showing, and is this light helping us or not. ये सारे के सारे questions we will trying to answer them. Alright, so basically ये light जो chapter है जो कि optics के अंदर आता है. Optics is a branch of physics under which we study light. ठीक है, तो ये जो ऑप्टिक्स वाला जो ब्रांच है और ये जो हम लाइट स्टडी कर रहे हैं टुडे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको हर एक क्लास में यू विल बी गेटिंग दिस अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल आपको इस लाइट से रूबरू होना पड़ेगा 10th क्लास में, उसके बाद 12th क्लास में. सो बेसिकली ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आप बेसिक्स अभी से क्लियर आउट कर सकते हो. बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर आप इनका अभी से क्लियर आउट कर पाओगे, सारे के सारे डाउट्स आपको अभी से क्लियर आउट हो जाएंगे, तो आगे जाके आपके बेसिक स्ट्रांग होने की वजह से ये टॉपिक आपका स्ट्रांग टॉपिक बन सकता है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू शुड मेक सम ऑफ द टॉपिक स्ट्रांग, ठीक है, ताकि उनके बेसिस पे आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओ. Right, that is the you can say it is one of the strategy you can use. Make the topic strong, जो कि बहुत ही most you can say expected questions के लिए होता है. Alright, तो आप उन टॉपिक्स को बार बार स्टडी करके स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. एंड इन दिस सिनेरियो यू शुड स्टडी फ्रॉम दिस लेक्चर, यू शुड स्टडी वेरी डीपली एंड वेरी यू कैन से वेरी मच विद फोकस. राइट, दैट वुड बी सो गुड फॉर यू ऑल. एंड ये जो टॉपिक है जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, वो टॉपिक आपको ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन में भी सफलता दिलवा सकता है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तुम एक टॉपिक पढ़ोगे और उसी से तुम स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड्स भी क्रैक कर सकते हो. एंड दैट इज़ हाउ you are going to do this by studying this lecture. Alright, you all know that we deal with both the types of examination, either they are the school examination or the Olympiads. We deal with the 6th, 7th and 8th Olympiads, all the science Olympiads basically, and mathematics Olympiads also, along with the NTSC, NSCJS, PRMO and your school examination for class 6 to 10. That is our criteria in which we are working together with you all. Right, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. And this is the thing that you have to write the TTB08, this thing TTB08 in the search box of the Telegram app. If you write this, you will be getting the list of the channels of the TTB, so you can join for class 8. Right, if you join that, you will be getting the DPPs and study material along with the notifications of the YouTube videos. Right, that would be good, ताकि आपको topics by topics पता चले. That would be a little bit of, you can say, informative also. Right, now see the team. This is the team actually which is going to help you a lot, and we as a team we are making you sure that you crack the examination. Right, you have set your aim for. That is the most you can say important thing. Also we deal with the science and mathematics Olympiad, so as a team we are making you prepare in doing so. Make sure you watch these video lectures, as these lectures are free for everyone, and make sure that you share it with your friends and relatives and all the persons you know, so that they study from these videos and they can crack all the examination goals they have set for themselves. That would be interesting and that would be an encouraging step, and you can take the first initiative yourself by sharing to all the people so that they study freely. Right, and these lectures are free of cost, so basically they will be benefited by these lectures if they study from these. Right, they should be focused towards their studies also. These lectures can help them. Alright, so you need to take a step, you need to share it with every one of your friends and all, so that they can become great achiever of their goals. Alright, and this is how you can help your friends also. Right, now in accordance to that, by providing the free lectures for you all, this is the second step for you also, that we have prepared some packages, and to access those packages you have to go on our website, and the website is www.talkingtextbooks.in. If you go on that website, you will be getting two type of packages over there, and for every class there are two packages. The one is the full and the second one is the test series. So basically the full package is actually
You can see here the full package consists of all the important things, right? That is the comprehensive study material. You will be getting the comprehensive study material, a very much focused study material by which you can gain the knowledge of the examinations of both the examination, right? The school and the Olympiad one. So basically सेकेंड थिंग, आपको जो होमवर्क सबमिशन फीचर मिलेगा, यहाँ पर आपको होमवर्क करना होगा एंड यू हैव टू सबमिट इट टू अस सो दैट वी कैन चेक एंड रिवर्ट इट बैक, राइट? वीडियो लेक्चर्स और जो लाइव क्लासेस है वो आपको फ्री में मिल ही रही है, राइट? उसके अलावा यू विल बी गेटिंग द टेस्टिंग पार्ट ऑल्सो. टेस्टिंग पार्ट में यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेज वेयर यू विल बी अटेम्प्टिंग द क्विजेज ट्वाइस अ वीक along with the periodic test papers. Periodic test papers वो papers हैं जो कि आपको बताएंगे that फाइनल एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो कैसा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, लेवल क्या रहता है, आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है टाइम एंड स्ट्रेस का, राइट? ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी विद द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. सो बेसिकली एवरी सिंगल ऑफ द थिंग इंक्लूडेड इन द फुल पैकेज इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? अलॉन्ग विद द फ्री क्लासेस यू आर गोइंग टू गेट. If you talk about the test series part, then it is just included the testing part also along with the video lectures which are free for everyone. So you will be getting the bi-weekly quizzes, you can get the periodic test papers along with the you can say the video lectures, right? That is the most important part. You can get them. If you are interested in buying them, if you want to make sure that you have a right path you must go on along with a very much you can say persistence, right? Then you can definitely buy them and you should write my code CY Live so that you can get a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in, right? So if you buy these packages, if you use my code, you will be getting a 30% discount. And if you are not sure about buying them but you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. So you can call us and all your queries will be resolved by us, right? And your all doubts will be resolved by us, and that would be so cool if you haven't any doubt about them, right? Now अब हम promise करते हैं, but before that let's see what we are going to study today itself. Alright, so basics of light we are going to study today. Chapter 7, light. This is the chapter 7. This is light. This is the lecture 1 and we are talking about the basics, just the basics, alright? So which everyone should know. And now the time is for promise. Promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. देखो बच्चों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज एक बार पढ़ के किसी को याद नहीं होता है सिवाय एक ऐसे बच्चे के जो बहुत 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 ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसका मेमोरी बहुत शार्प हो, राइट? हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर कोई बन ज़रूर सकता है जस्ट बाय रिवाइजिंग द कंसेप्ट. Alright, so if you want to see yourself at a step जहाँ पे आप जल्दी जल्दी याद कर सके सभी चीज़ों को, then you must revise it and you practice it daily. Alright, तभी आप ऐसा कर पाएंगे. So make sure कि आप ये lecture देखें, notes proper करें and उसके बाद revision करें. That is the most important part. Alright, so we will be like doing the next thing. Alright, we will be doing the next thing, and what is that? We will be studying the light, the branch of physics, optics, theories about nature of light, dual nature, source of light, medium of light, characteristics of light. We will be looking all the things today itself. Alright, so basically let's talk about introduction जो हम light का देखने वाले हैं. Let's talk about that. तो देखो, which sense helps in see things? क्या कौन सी ऐसी सेंस होती हैं जो कि हमें देखने में मदद करती हैं, राइट? अब आप सोचेंगे हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, ये बात सभी को पता है, राइट? 5 सेंसेस जो होती हैं उनमें से एक सेंस जो है उसे हम कहते हैं द सेंस ऑफ साइट. और ये जो सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ विजन जो आपको मिला है, दैट सेंस ऑफ साइट एंड विजन इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? क्योंकि इसकी वजह से हम देख पाते हैं, राइट? तो ये एक ऐसा सेंस है जो हमें देखने में हेल्प करता है. ऑलराइट, सो लेट मी राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि सभी को अभी तक पता होना चाहिए. ऑलराइट, तो व्हिच सेंस हेल्प्स इन सी थिंग्स? तो वी कैन राइट हियर सेंस ऑफ साइट या फिर विजन. ऑलराइट, तो ऐसी सेंस जो कि आपको देखने में हेल्प करती है, जो कि आपको यू कैन से हेल्प करती है विजन करने में, ऑलराइट, ऑब्जर्विंग थिंग, सराउंडिंग्स को देखने में हेल्प करती है. दैट इज द सेंस ऑफ साइट एंड द विजन. ऑलराइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज कैन वी सी लाइट? क्या हम लाइट को देख सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या आप सचमुच में लाइट को देख रहे हैं? कैन यू सी लाइट? एक्चुअली दैट इज अ बिग फैट नो, यू कैन नॉट सी लाइट। ऑलराइट, आप लाइट को नहीं देख सकते। हम लाइट के सोर्स को देख सकते हैं, हम बाकी और चीज़ों को देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी द लाइट इटसेल्फ, राइट। तो इसका जो आंसर है, जो काफ़ी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन लेकर आता है, उसका आंसर है नो, वी कैन नॉट सी लाइट। हम लाइट नहीं देख सकते। ऑलराइट, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैन वी सी थिंग्स? क्या हम बाकी चीज़ों को देख पा रहे हैं? क्या आप अपने रूम में कर्टन्स, विंडोज, फ्लावर पॉट्स एंड वेसेस, अलमीराज, बेड, टेबल, इनको देख पा रहे हैं? अगर आप इनको देख पा रहे हैं तो यस, द आंसर इज यस, वी कैन सी थिंग्स, राइट। तो हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं, वी कैन सी थिंग्स। Alright, now let me tell you the next question. Can we see things in dark? क्या हम डार्क में चीज़ों को देख पाते हैं? मतलब अगर लाइट चली जाए तो कमरे में पूरा अंधेरा हो जाए, बिल्कुल कहीं से भी लाइट नहीं आए, तो क्या तुम देख पाओगे? क्या तुम चीज़ों को देख पाओगे? कहाँ बेड रखा है, कहाँ टेबल रखा है, कहाँ तुम्हारी बुक्स रखी हैं, कहाँ पेन रखे हैं, क्या तुम देख पाओगे? नॉट एट ऑल। सो बेसिकली डार्क में हम चीज़ों को नहीं देख पाते, अंधेरे में हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन विल लीड अप यू टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डेफिनेशन ऑफ द लाइट। ऑलराइट, सो कैन वी सी थिंग्स इन द डार्क? So basically no, we cannot see things in the dark. All right, so it would be no, we cannot see things in the dark. ठीक है, हम में बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। And the next question, I want you to answer it. Can we see things if there is light but no sense of sight? क्या हम तब देख पाएंगे जब लाइट तो होगी बट हमारी सेंस ऑफ साइट नहीं है? So basically if we do not have eyes, we cannot see that. हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो we should have the sense of sight, right? We should have the sense of sight obviously along with the light also. So basically अगर लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा तो हम नहीं देख पाएंगे, सिंपल सी बात है, right? अंधेरा होगा, ठीक है, तो भी हम नहीं देख पाएंगे। सेंस ऑफ साइट होगा तो भी हम नहीं देख पाएंगे, राइट? If there is light but no sense of sight, so we cannot see that, right? तो ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, सेंस कौन सी हमें हेल्प करती है? क्या हम लाइट देख सकते हैं? क्या हम चीज़ों को देख सकते हैं? क्या हम डार्क में चीज़ों को देख सकते हैं? और क्या हम लाइट तो है बट सेंस ऑफ विजन नहीं है? अगर ऐसा पॉसिबल है क्या तब हम देख सकते हैं? तो इतनी सारी सवालों के क्वेश्चंस हमको एक डेफिनेशन की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि जब लाइट होगी तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं, राइट? और उसके अलावा हमें चाहिए एक सेंस ऑफ साइट भी, राइट? तो ये दोनों चीज़ें अगर पॉसिबल हुई, वी कैन सी थिंग्स, बट इफ आइदर वन ऑफ दैम इज यू कैन से एब्सेंट, तब हम लोग ऐसी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, राइट? तो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द लाइट. Light is an invisible form of energy which causes the sensation of vision. So basically we cannot see light. It is an invisible form of energy. है ना? दो बातें important है. First क्या है कि light is invisible. Second important ठीक है वो है यहाँ पर sense जो कि vision जो कि cause करती है ये invisible light, right? Second जो important चीज़ है that is the form of energy. So basically light is an invisible form of energy. खुद नहीं दिखाई देती है वो लाइट, राइट? लेकिन बाकी चीज़ों को विजिबल कर देती है बिकॉज इट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट, ऑलराइट? सो बेसिकली इट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट खुद नहीं दिखती है बट विजन का सेंसेशन जरूर क्रिएट कर देती है. सो बेसिकली खुद इनविजिबल होती है बट बाकी सारी चीज़ों को वो विजिबल बना देती है. सो वी आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ लाइट ओनली. इफ देयर इज नो लाइट, दैट इज इफ वी आर इन डार्क, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, राइट? तो फटाफट से इसका डेफिनेशन नोट करो. Alright, now let's move on to the other things we need to discuss and what is that? Optics. ठीक है,
तो ये जो ऑप्टिक्स है एक्चुअली में, इस ऑप्टिक का मतलब क्या हुआ कि ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट एज एन, ठीक है, तो ये एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, लाइट का क्या क्या फिनोमेनास होते हैं उनको स्टडी करते हैं। सो बेसिकली हम लोग ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम लाइट की बातें कर रहे हैं, लाइट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लाइट को स्टडी कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रही है, कहाँ जा रही है, कैसे क्या कर रही है, ठीक है, जब कभी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द ऑप्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्रांच है लाइट को जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर भी, इस ऑप्टिक्स ब्रांच के अंदर भी देयर आर 3 ब्रांचेस, ऑलराइट। फर्स्ट वन इज द ज्योमेट्रिकल इन द रे ऑप्टिक्स। यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऐसे फिनोमेनास को देखते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही है, रे की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। सेकेंड आप देख सकते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स, एंड द थर्ड वन इज द वेव एंड द फिजिकल ऑप्टिक्स। सो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स में हम इस तरीके से देख पाते हैं कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव कर रही है, और वो किस तरीके के फिनोमेना दिखा रही है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इस तरीके के फिनोमेनास दिखा रही है, ठीक है। थर्ड वन आप देखो क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स ऐसा यू कैन से पार्ट है जहां पर लाइट को हम बहुत ही माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, फिर हम बहुत ही बहुत ज़्यादा डीप लेवल में स्टडी कर रहे होते हैं, माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं, जहाँ पे फिनोमेना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। सो बेसिकली अगर हम अलग अलग तरीके से लाइट को स्टडी कर रहे हैं, सो वी गेट 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। अगर हम लाइट को रे मान के स्टडी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन फिनोमेना को देख रहे हैं, सो वी आर स्टडिंग द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और द रे ऑप्टिक्स। अगर हम लाइट को वेव मान के स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर स्टडिंग द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमेना, तब हम उनको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। एंड इफ वी आर लुकिंग अप टू द लाइट बट इन अ वेरी माइक्रो लेवल, बहुत ही छोटे लेवल पे हम लाइट का स्टडी करें कि वो किस तरीके से बिहेव करता है जब वो किसी मेटल पे फॉल होता है या समथिंग, तो ये जैसे फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग देखते हैं, तो इस वक्त एक्चुअली हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। सो इस एक ऑप्टिक्स में भी 3 तरीके के हम लोग देख रखते हैं ब्रांचेस, ऑलराइट। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट पे। तो देखो सोर्सेज ऑफ लाइट वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो खुद से अपनी लाइट को एमिट करती हैं, ठीक है, मतलब जहां से लाइट आ रही है, ऑलराइट, खुद से एमिट तो नहीं बट जहां से लाइट आ रही है, आइदर दे रिफ्लेक्ट और दे एमिट देमसेल्व्स, बट लाइट वहां से आती है, ऑलराइट। सो देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज, ठीक है, वो 0.1 भी हो सकते हैं, बहुत छोटे से सोर्सेज भी हो सकते हैं, और वो बहुत बड़े सोर्सेज भी होते हैं, जस्ट लाइक सन, ठीक है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज, यू कैन सी द सन, ठीक है, यू कैन सी द कैंडल, द स्मॉल वन, स्मॉल सोर्स, मून, ठीक है, लेस देन द सन डेफिनेटली, एंड फायरफ्लाइज, जुगनू जिसे बोलते हैं हम लोग, alright, so there can be various sources of light. Let's talk about the types of sources. So types of sources are luminous sources of light and non-luminous sources of light. Luminous sources of light ऐसे sources होते हैं जो कि खुद से light को emit करते हैं, जैसे example देखते हैं, देखो those objects which emit light by themselves are known as the luminous objects and they can be taken as the luminous sources of energy of light, right? एंड यू कैन सी ये जो लुमिनस होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। नेचुरल में कौन हुआ जो खुद से लाइट एमिट करता है, सन, स्टार्स, राइट, तो ये तो नेचुरल में आ जाते हैं, यू कैन सी सन, लाइटनिंग भी है, स्टार्स भी हैं, तो ये नेचुरल लुमिनस सोर्सेज में आ जाते हैं, ठीक है, ये नेचुरली दे आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर, राइट, और वो लाइट को एमिट करते हैं। वहीं पर अगर ह्यूमन मेड और मैन मेड की बात करें, यानी कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं, आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो वो है लैम्प, ठीक है, बल्ब, CFLs, ट्यूब लाइट्स, राइट, ये भी ऐसे सोर्सेज हैं जो मैन मेड हैं, मेड बाय अस, राइट, ह्यूमंस बाय डेफिनेटली। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो लुमिनस सोर्सेज हैं वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो खुद से लाइट एमिट कर रहे हैं, राइट, खुद की लाइट होती है उनकी, दे कैन बी नेचुरल, दे कैन बी आर्टिफिशियल, ऑलराइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती है जिनकी खुद की लाइट तो नहीं होती, बट वो क्या करते हैं, दूसरों की लाइट जो खुद पे गिरती है उसे रिफ्लेक्ट करके आपको दे देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है वहीं से आ रही है। जैसे नेचुरल की अगर हम बात करें तो दोज आर व्हाट, द प्लैनेट्स एंड द मून, ऑलराइट। नेचुरल नॉन लुमिनस सोर्सेज की बात करें तो वो है मून, क्योंकि वो हमें दिखता है, विजिबल होता है, नाइट टाइम में वो हमें रोशनी देता है, राइट, उसकी खुद की रोशनी नहीं होती मगर वो हमको तो दे रहा होता है, राइट। और यू कैन सी द प्लैनेट्स,
ऑलराइट, कभी कभी हमें आसमान में प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, एट वेरी मच यू कैन से कंडीशंस होती हैं उसकी, कुछ जैसे लाइक वीनस दिखाई दे जाता है बिकॉज इट इज नोन एज द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार ऑल्सो, राइट। उसके अलावा देखो, अगर तुम आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, तो ये तो भरमार में है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम में ही चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखो, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है और वो लाइट एमिट नहीं करती है, वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। योर टेबल, योर पेन, योर नोटबुक, योर बेड, योर अलमीरा, योर विंडो, योर कर्टेन्स, एवरीथिंग इन द रूम विच आर नॉट ग्लोइंग और नॉट लुमिनस आर द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और द सोर्सेज ऑफ लाइट। सो बेसिकली लाइट उन पे फॉल होती है और वो फॉल होने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों में जाती है, राइट। दैट्स हाउ यू कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, मीडियम ऑफ लाइट। सो बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से लाइट या तो चली जाती है या फिर जाने की कोशिश करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ लाइट जो हैं वो एक्चुअली में क्या है, 3 तरीके के मीडियम्स हैं। देखो, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर से फुली लाइट जा सकती है, दोज मीडियम्स आर नोन एज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। सेकेंड आप देख सकते हो जिसमें से पार्शियल लाइट जाती है, दोज कैन बी टेकन एज द ट्रांसल्यूसेंट। एंड द थर्ड वन जिसके अंदर से बिल्कुल भी लाइट नहीं जा सकती, दोज कैन बी टेकन एज द ऑपिक ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये जो मीडियम ऑफ लाइट है ये 3 उसमें डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यू कैन सी द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपिक ऑब्जेक्ट्स। नाउ लेट्स गेट इनटू द डीपनेस ऑफ द टॉपिक्स। सो बेसिकली लेट्स सी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनके आर पार आप देख सकें, ठीक है, यानी कि लाइट उनमें से जा सकती है, दे कैन पास, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली लाइट को अपने अंदर से जाने की अलाउ दे रहे हैं, मतलब यू कैन से परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से लाइट जा सकती है, दोज आर नोन एज द ट्रांसपेरेंट वन। अब जैसे ये है, आपको फिश दिख रही है, यू कैन सी इनसाइड, राइट। आप इस कांच के अंदर से, दिस इज अ ग्लास बाउल, तो आप इस ग्लास बाउल के अंदर से देख पा रहे हैं, आप क्लियर पानी में से देख पा रहे हैं, दैट मीन्स देयर आर 2 मीडियम्स जिनके अंदर से आप देख पा रहे हैं, 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम्स आर अवेलेबल हियर। वन इज द ग्लास, सेकेंड वन इज द वाटर, राइट। तो हम उसमें से देख पा रहे हैं, तो दीज कैन बी टेकन एज द ट्रांसपेरेंट वन, ठीक है। सेकेंड जो आता है दैट इज द ट्रांसलूशन। अब ये ट्रांसलूशेंट ऑब्जेक्ट्स कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिसमें से पार्शियल लाइट जाती है। इसका मतलब अगर आप उसके आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर तो नहीं दिखेगा, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा दैट सम ह्यूमन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द ग्लास और द शीट। जैसे कि आपका बटर पेपर में आप क्लियर नहीं देख पाते हैं, बट यू कैन मेक आउट समथिंग कि भाई कुछ तो है या फिर क्या चीज़ है, ये आपको पता चल जाता है, बट आपको क्लियर दिखता नहीं है, राइट। दैट इज एक्चुअली द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे उसका एग्जाम्पल यू कैन सी द फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है, फ्रॉस्टेड ग्लास, ग्राउंड ग्लास, ग्रीस्ड पेपर, पैराफिन वैक्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसी ऑब्जेक्ट जो पार्शियली लाइट को अपने अंदर से जाने देती है, मतलब कुछ पार्ट तो चला जाता है और कुछ पार्ट नहीं जाता है, ठीक है। फिर आता है थर्ड वन, ऑपिक ऑब्जेक्ट। ऑपिक ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि बिल्कुल भी अपने अंदर से लाइट को नहीं जाने देती, ठीक है, मतलब टोटली स्ट्रिक्ट नो, ऑलराइट, लाइट बिल्कुल भी उनके अंदर से नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल योर नोटबुक, आपकी जो नोटबुक है दैट इज एन ऑपिक ऑब्जेक्ट। आप उसको क्या करो, बल्ब के सामने ऐसे करके रखो एंड यू आर नॉट एबल टू मेक आउट द बल्ब, ऑलराइट, तो यू कैन नॉट सी थ्रू द नोटबुक, राइट। तो इट कैन प्रूव दैट दैट ऑब्जेक्ट इज एन ऑपिक ऑब्जेक्ट। जैसे कि वुडन डोर, यू कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट वुडन डोर, राइट, तो दैट इज द मेन थिंग, आप उनके थ्रू नहीं देख पाते हो, ऑलराइट। तो ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू आप नहीं देख पाते हो बिल्कुल भी, और जिनमें से लाइट नहीं जा पाती है बिल्कुल भी, दोज आर नोन एज द ऑपिक ऑब्जेक्ट्स, ऑलराइट। मेक श्योर यू नोट द डेफिनेशन। Alright, now let's move on to the rectilinear propagation of light. So देखो, रेक्टिलिनियर का मतलब आपको समझ में आता है, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, राइट। दैट मीन्स जो लाइट रेज होती हैं, जो कोई भी लाइट होती है वो एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है, बिल्कुल स्ट्रेट, बट इन ऑल डायरेक्शंस, ऑलराइट।
तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट रेज खिड़की में से अंदर आ रही हैं, ऑलराइट, तो यू कैन सी ऑल द लाइट रेज आर स्ट्रेट, यू कैन मेक आउट द स्ट्रेट पार्ट, ऑलराइट, दोज आर द स्ट्रेट लाइट रेज, ऑलराइट, बट the most important thing is actually the thing which is needed here कि भाई ये सभी डायरेक्शंस में जा रही है, स्ट्रेट जाती हैं बट सभी डायरेक्शंस में जाती हैं। आपने बचपन में सन का ड्राइंग कभी किया है? ऑब्वियसली सभी बच्चे सन तो बनाते ही हैं, ठीक है, मैंने भी बनाया था। सो हाउ डू वी मेक अ सन? जब हम छोटे थे तो हम किस तरीके से सन बनाते थे? कुछ ऐसे बनाते थे, पहले एक सर्कल एंड देन एक इस तरीके से लाइन जो कि सन में से, सर्कल में से बाहर निकल रही होती थी, राइट? तो देखो बचपन में ही हमको पता चल गया था कि सारी की सारी सनलाइट जो होती है ना बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है बट सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है, ठीक है। यू कैन सी द लाइंस, दे आर टोटली स्ट्रेट, दे आर टोटली स्ट्रेट एज यू कैन सी दीज, ठीक है। तो ये जो लाइट रेज होती हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो लाइट रेज होती हैं ये सभी डायरेक्शंस में जाती हैं, स्ट्रेट बट इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल कोई लाइट रे अगर ईस्ट में जा रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ईस्ट में जाएगी, बट लाइट रेज वेस्ट में भी जाएंगी स्ट्रेट, लाइट रेज नॉर्थ में भी जाएंगी स्ट्रेट, लाइट रेज साउथ में भी जाएंगी स्ट्रेट, ठीक है। तो बेसिकली दे विल मूव इन ऑल द डायरेक्शन बट दे विल मूविंग स्ट्रेट, ऑलराइट, दैट इज नोन एज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। नोट दिस डाउन। Alright, now let's move on to the experiment. How we can prove that light travels in a straight line. उसके लिए आप या तो एक काम और कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि आप क्या करें, आप एक हॉलो पाइप लें, ठीक है, स्ट्रेट हॉलो पाइप। अगर आप उसके अंदर से कोई भी यू कैन से कोई कैंडल का लॉ, ठीक है, कैंडल का जो ऊपर का फ्लेम होता है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, राइट। तो अगर आप स्ट्रेट बिल्कुल हॉलो पाइप लेते हैं उसमें से आप बिल्कुल देख पाएंगे उसकी लॉ को, बट अगर आप कोई बेंट पाइप ले लेते हैं और उसमें से उसकी जो फ्लेम है उसको देखने की कोशिश करते हैं तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज लाइट क्या है, कर्व में फॉलो नहीं करती है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। दैट्स व्हाई लाइट फ्रॉम दैट फ्लेम विल नॉट रीच अप टू योर आईज और यू आर नॉट एबल टू सी द फ्लेम। उसके अलावा ये तो एक्सपेरिमेंट आप ट्राई कर सकते हैं, बट उसके अलावा आप इसको भी देखिए, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखो देयर आर 3 वुडन अपराइट्स, 1 2 3 वुडन अपराइट्स मीन्स यू कैन से द वुडन विच इज स्टैंडिंग वर्टिकली, वुडन पीस यू कैन से दैट, ठीक है। सो ए बी सी देयर आर 3 वुडन पीसेस स्टैंडिंग हियर, देयर आर 3 होल्स ऑल्सो एट द सेम हाइट सेम प्लेस, ठीक है। तीनों, ये वाला होल, ये होल एंड ये तीनों के तीनों बिल्कुल एक ही पोजीशन पर है, हर एक यू कैन से वुडन बोर्ड पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक कैंडल को लाइट आउट किया और हमने इन छेद में से, इन होल्स में से देखने की कोशिश की। व्हेन वी ट्राई टू सी वी आर एबल टू सी द फ्लेम, ऑलराइट, लेकिन व्हाट इफ हम क्या करें, इस बी वाले को उठा के डिस्प्लेस कर देते हैं, इसका जो सर्कल है कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि सर्कल क्लोज हो जाए। तो देखो यहाँ से लाइट रे आएगी बट इट विल स्टक हेयर, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि क्लोज कर दिया है तो क्या होगा, लाइट आगे नहीं जाएगी एंड वी आर नॉट एबल टू सी दैट, दैट इज शोइंग अस दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं करती। सो मेक श्योर यू नोट इट आउट। All right, now let's move up to the
now we know the propagation of light, how it propagates, right? ये चीज़ अब हमें पता चल चुकी है. Now let's move on to the terms जो कि लाइट से रिलेटेड है. ठीक है, तो देखो जब किसी भी डायरेक्शन में लाइट जा रही होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रे बनाते हैं. वी ऑल नो व्हाट रे इज, है ना. तो देखो, तो जब कभी भी हम लोग बता रहे होते हैं दैट अ लाइट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एरो, तो दिस इज लाइक अ रे ऑफ लाइट. दिस इज अ रे ऑफ लाइट एंड दिस एरो इज एक्चुअली शोइंग यू वेयर द लाइट इज गोइंग. ठीक है, तो लाइट के पाथ को बताने के लिए कि भाई कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ को लाइट जा रही है, ये चीज शो करने के लिए वी यूज अ लाइन एंड वी मेक एन एरो. सो वी यूज अ रे एक्चुअली टू शो दैट. दिस इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट. देखो, द पाथ along which light energy travels in a given direction is called ray of light. A ray of light is represented as a straight line. The arrowhead on it gives the direction of the light. ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट द arrow and the line is showing you the path along which the light energy is moving. Basically we can see we can represent it by and making an arrow, and that is known as the ray of light. Alright, अब हम बात करते हैं बीम ऑफ लाइट की. देखो, बीम ऑफ लाइट इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ रेज. ठीक है, जो बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है बहुत सारी लाइट रेज एक साथ आ रही हैं. ऑलराइट, सो दैट कैन बी टेकन एज द बीम ऑफ लाइट. अगर जैसे लाइट रेज बहुत ही कम हो, 1 2 3 हो, लाइक दैट, अगर बहुत ही कम लाइट रेज होती हैं तो वी से दैट पेंसिल ऑफ लाइट. ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट बोल देते हैं. बट अगर ज्यादा रेज होती हैं देन वी ऑलवेज से इट अ बीम ऑफ लाइट. ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. हाउएवर इफ द नंबर ऑफ रेज इज टू स्मॉल देन सच अ कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज द पेंसिल ऑफ लाइट. ऑलराइट, सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. राइट इट आउट, राइट इट आउट. Alright, now let me tell you, ये जो बीम होती है ना, बीम ऑफ लाइट, ये 3 टाइप्स की होती है. ठीक है, दिस बीम इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, 3 टाइप की होती है, पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट. ठीक है, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट. पैरेलल बीम ऑफ लाइट. पैरेलल बीम ऑफ लाइट कब होगा, जब बहुत सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो उस बीम को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं. कैसे हम उनको ड्रॉ करेंगे, देखो इस तरीके से हम कुछ ड्रॉ करेंगे. एक लाइट रे है, अदर वन विच इज पैरेलल, अदर वन पैरेलल, अदर वन पैरेलल, अदर वन पैरेलल. So these are all the light rays which are parallel to each other. So basically this is representing the, you can say, parallel beam of light. ठीक है, वहीं पर सेकेंड टाइप क्या आता है, कन्वर्जेंट बीम. कन्वर्जन बीम वो बीम होती है जहां पर बहुत सारी लाइट रेज होती है बट दे आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स वन सिंगल पॉइंट. उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बीम बोलते हैं. कैसे होती हैं ये, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, इस पॉइंट की तरफ आ रही है सारी की सारी लाइट रेज, अगर इस तरीके से मूव करती है, एक ही पॉइंट की तरफ जा रही है. सो यू कैन सी such type of collection of waves is actually representing the convergent beam. That means all the light rays are going towards one point and they are meeting at that point. ठीक है, just like this, all the light rays are going towards one point and they are meeting at that point. तो हम उसे क्या बोलते थे, such type of collection we say it, right, convergent beam. वहीं पर जो डाइवर्जेंट बीम होती है, द थर्ड वन, डाइवर्जेंट बीम होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट से स्प्रेड आउट हो रही होती है. ठीक है, तो लाइट अगर एक पॉइंट से सभी डायरेक्शंस में जा रही है, दैट मीन दैट इज नोन एज द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. और ये किस तरीके से बन सकती है, देखो इस पॉइंट से जाते हुए दूर जा रही है. ठीक है, दे आर लाइक मूविंग इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. ऑलराइट, लाइक दिस. So these all are moving from one single point, right, in all possible directions. So basically spreading out of the light rays is happening here and they are known as the divergent beam of light. This such type of collection is actually the divergent beam of light. Now you can note all the 3 definitions here.
ऑलराइट, अब हमें पता चल गया है कुछ ऐसे टर्म्स, हाउ वी रिप्रेजेंट एंड हाउ वी से द रे ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट, व्हाट्स द पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। अब देखो इन सब के बाद लेट्स टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, ठीक है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पता होनी चाहिए। सो नंबर 1 इज लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। सो बेसिकली लाइट का दो नेचर होते हैं, लाइट के पास दो नेचर होते हैं, इट कैन बिहेव एज एन पार्टिकल, इट कैन बिहेव एज एन वेव। So light has two types of nature and they actually act the same as at the same time, right? उसका dual nature होता है, it can show the phenomena for the particle nature also and it show the phenomena of the wave nature also, right? So it has two types, you can say two dual nature, two nature simultaneously. Alright, second characteristic देखो, light is an electromagnetic wave, ठीक है, light हम लोगों ने याद है sound wave में हम लोगों ने study किया था द टाइप्स ऑफ वेव, राइट, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ी थी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली मूव थ्रू दी वैक्यूम ऑल्सो, बिकॉज वी नो दैट कि भाई लाइट जो है वो वैक्यूम में से ट्रैवल करती है, सो दैट मीन्स दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो ये क्या करती है, इसके अंदर वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो कि प्रोपोगेट करते हैं, एंड ड्यू टू विच द लाइट इज ऑल्सो प्रोपोगेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ फिनोमेना. Light does not require material medium for its propagation, that is light can travel through vacuum. We know that is true क्योंकि sun से earth तक जो light आती है वो vacuum के through ही तो आती है, right? तो इसका मतलब जो light है वो vacuum के through travel कर सकती है, it is so true, right? तो इसका मतलब light को flow करने के लिए, light को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए there is no need of any material medium, just like solid, liquid, gas, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो और भी अच्छा है, right? देखो चौथा, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इट्स स्पीड इज मार्जिनली लेस इन एयर, इट्स स्पीड डिक्रीजेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर. तो देखो लाइट की सबसे तेज स्पीड होती है, यू नो दैट कि लाइट दुनिया में, यू कैन से यूनिवर्स में सबसे तेज मूव करती है, ठीक है, सबसे तेज मूव करती है. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द हाईएस्ट स्पीड दैट इज ऑफ लाइट, ठीक है. तो बेसिकली देखो इतना तेज स्पीड होता है, बट इसका जो स्पीड होता है वो मीडियम्स पे जो है कम हो जाता है. फॉर एग्जांपल जब वो एयर में आती है, वैक्यूम में आती है, सबसे तेज भागती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भागती है. जब वो एयर में आ जाती है तो लिटिल बिट उसकी स्पीड कम हो जाती है, बट फिर भी हम ऑन एन अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं. फिर जब वो लिक्विड में जाती है तो उसका स्पीड और डिक्रीज हो जाता है, एंड फिर जब वो सॉलिड में ट्रैवल करती है तो उसका स्पीड और डिक्रीज हो जाता है. तो बेसिकली क्या होता है, डेंसर मीडियम में से गुजरते वक्त उसका स्पीड कम होते जाता है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट वन, लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेसेस सच एज मिरर्स. अब देखो अगर कोई बहुत ही पॉलिश सरफेस है, ठीक है, पॉलिश सरफेस है मतलब बहुत ही स्मूथ है, उसके जो यू कैन से ग्रूव्स बहुत ही कम है, रफनेस बहुत ही कम है, अगर ऐसी सरफेस पॉसिबल होती है तो फिर क्या होता है, लाइट उसके ऊपर फॉल होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट गोज बैक, दैट इज इट इज शोइंग द रिफ्लेक्शन फिनोमेना, ठीक है. तो ऐसी सरफेसेस जो बहुत प्लेन होती हैं, पॉलिश्ड होती हैं, उनसे लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो करती है, ठीक है. सिक्स्थ वन देखो, लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. अब देखो लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल करती है, या फिर एयर से ग्लास में ट्रैवल करती है, या फिर वैक्यूम से एयर में ट्रैवल करती है. सो इट चेंजेस द मीडियम, राइट. मीडियम चेंज करने पर ये क्या करती है, अपना हल्का सा पाथ चेंज कर लेती है, एंड दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल इन द लेटर, बट यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा दैट रिफ्रैक्शन हैपेंस एट दिस, ऑलराइट. नेक्स्ट देखो, नो ऑब्जेक्ट इज विजिबल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. दैट इज सो ट्रू. अगर लाइट गुम हो जाएगी, लाइट अगर एब्सेंट हो जाएगी, दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी ऑब्जेक्ट, राइट. हम लोग बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये प्रूफ है, हम लोग अंधेरे में बिल्कुल नहीं देख पाते. रीजन इज एब्सेंस ऑफ लाइट में हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, राइट. दैट इज द थिंग. सो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो है नोट करें, देन हम आगे देखने वाले हैं. ऑलराइट, तो ये हैं इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक. नाउ लेट्स लुक अप टू दी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट.
तो देखो नेक्स्ट वन इज light as it come from sun consists of 7 colors, namely violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. This sequence of colors is known as the Vibgyor. तो देखो आप Vibgyor, VIBGYOR, you can remember all the 7 colors mixed inside of the sunlight. आपको sunlight white दिखाई देती है, means you cannot see the sunlight, but you can say it is appearing as a white light. ये जो white light होती है एक्चुअली ये 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है, एंड द कलर्स आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. There are 7 colors, and when these 7 colors are mixed together, it forms white color. You can always do the experiment also. आप क्या करो, ये 7 कलर्स इकट्ठे कर लो, ठीक है, वाटर कलर्स, यू कैन टेक द वाटर कलर्स ऑल्सो. तो आप वाटर कलर्स इकट्ठे कर लो, 7 वाटर कलर्स इकट्ठे कर लो, एंड उन सभी को मिक्स कर दो इन द सेम क्वांटिटी. अगर तुम ऐसा करते हो, देन यू विल बी गेटिंग द वाइट लाइट एज अ रिजल्ट, द मिक्सचर ऑफ दोज कलर्स. येस, इट्स ट्रू, यू कैन डू दैट योरसेल्फ. उसके अलावा देखो, लाइट एक इनविजिबल एनर्जी होती है विच कॉजेज इन अ सेंसेशन ऑफ साइट. सिंस लाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी हीट से ऑब्टेन होती है. दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड to a temperature of beyond 1500 degree Celsius, we can say that light is kind of energy which is emitted from that substance. तो इसका मतलब अगर कोई लाइट कोई सब्सटेंस, ठीक है, जो कि खुद से एमिट करना चाहता है लाइट को, तो हमें उस सब्सटेंस को 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, अगर उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन. तो इसका मतलब सन का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होगा और स्टार्स का भी बहुत ज़्यादा होगा, राइट. तो मतलब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, उससे भी ज़्यादा हो जाए, तब वो एज अ सोर्स ऑफ लाइट वी कैन प्लेस दैट ऑब्जेक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट. ऑलराइट, तब जाके वो क्या करेगी, वो लाइट को एमिट करना स्टार्ट करेगी. ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट लाइट एनर्जी मेक्स द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट विजिबल, बट बाय इटसेल्फ इट इज एन इनविजिबल एनर्जी. ये तो मैं तुमको बता ही चुकी, लाइट खुद तो इनविजिबल होती है, बट बाकी चीज़ों को वो क्या कर देती है, विजिबल बना देती है. ऑलराइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लाइट खुद नहीं दिखाई देती, बट बाकी चीज़ों को दिखाई दे देती है. आप खुद भी बोल सकते हो जो एयर है ये भी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इट इज ऑल्सो इनविजिबल. वी कैन नॉट सी द एयर अराउंड अस, हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बट वी कैन सी द थिंग्स ऑलवेज. तो आप जैसे लेट्स से आपका अलमीरा का डोर और आपके बीच में देयर इज air between you, but you can see that almirah, that means that air, the filled inside both of you, you can see between the gap, so it is invisible, right. तो इससे आपको पता चलेगा that actually में the air is invisible, also the light is invisible, but they can definitely going to make you see all the things around you. all right, तो इसे फटाफट से नोट करेंगे, ठीक है. तो जैसे अगर हम देखें कि लेट्स से हम किसी पोस्टर को देख रहे हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम किसी पोस्टर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कलर्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. तो वो जो कलर है एक्चुअली में क्या हो रहा है, हमारी सारी की सारी लाइट रेज फ्रॉम डिफरेंट कलर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पोस्टर्स हमारे आंखों में जा रही है. देन इट इज गोइंग ऑन द रेटिना, रेटिना से वो जा रही है ब्रेन में, ब्रेन पहचान रहा है दीज आर द डिफरेंट कलर्स, सो यू आर एबल टू सी द डिफरेंट कलर्स और इवन आइडेंटिफाई दैम just because of our brain and the retina. all right, and also light is also important, ठीक है. तो तुम इसे फटाफट से नोट करो. all right, now let's move on to the behavior of light at the interface of two media. देखो अभी क्या होगा, I will be telling you an important concept here. अभी देखो ये मीडियम 1 है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ मीडियम 1 एंड दिस इज अ मीडियम 2. लेट्स से दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर. तो जब एयर से आई एम अज्यूमिंग दैम एज द एयर एंड वाटर, तो एयर और वाटर में से जब लाइट जाती है, तो व्हेन दिस इंसिडेंट लाइट रे फॉल्स ऑन द वाटर सरफेस, द सरफेस ऑफ द वाटर, दैट मीन्स द सरफेस विच इज सेपरेटिंग आउट द एयर एंड द वाटर, ठीक है. तो उस पर जब फॉल होती है तो इस जगह पे 3 फिनोमिनाज होते हैं, ठीक है. देयर आर 3 फिनोमिनाज. नंबर 1 क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब जो लाइट यहाँ पर फॉल हुई है, जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, यही लाइट एक्चुअली सम ऑफ द पार्टिकल्स गो बैक इनटू द एयर. दिस इज द रिफ्लेक्शन गोइंग बैक इनटू द सेम मीडियम. एयर में से आ रही थी, टकराने के बाद एयर में ही चली गई, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन. सेकेंड फिनोमेना, कुछ पार्ट ऑफ द सम पार्ट ऑफ द लाइट
इसके ऊपर फॉल होता है ना, तो फिर वो क्या करेगा, लाइट के अंदर पानी के अंदर चला जाएगा, सेकेंड मीडियम के अंदर चला जाएगा, बिकॉज यू आर एबल टू सी द फिश इज मूविंग इनसाइड द वाटर, because there is some light inside that water. All right, so basically the second phenomena is what, actually refraction of light. ठीक है, this is called refraction of light. And the third phenomena is actually what, थोड़े टाइम बाद जब पूरा दिन गुजर जाता है तो आपको क्या लगता है, पानी हल्का हल्का गर्म हो जाता है ना, इट्स लाइक उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, दैट मीन्स देयर इज ऑल्सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हियर. ठीक है, तो सम पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड हियर. सो देयर आर 3 phenomena. ठीक है, सो देयर आर 3 phenomena जो कि इस जगह पर हो रहे होते हैं. तो अगर किसी लाइट एक मीडियम से आते हुए दूसरे मीडियम के सरफेस पे अगर स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे 3 phenomena हो रहे हैं. थोड़ी सी लाइट तो वापस उसी मीडियम में चले जाएगी एयर में, थोड़ी सी लाइट पानी के अंदर चले जाएगी, और कुछ पार्ट ऑफ द लाइट, द रिमेनिंग पार्ट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय दीज मॉलिक्यूल्स, और इससे उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. सो देयर आर 3 phenomena जो कि ऑलवेज अपीयर होते हैं जब एक मीडियम से लेके लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है. तो ठीक है, इन फिनोमिनास को अगर हम डिटेल में देखें तो सी, नंबर 1, a part of the incident light is turned back into the first medium. This phenomena is known as the reflection. एयर में से आ रही थी, टकराने के बाद एयर में पे थोड़े बहुत लाइट एनर्जी चली गई एयर में, तो वो एयर से आ रही थी, एयर में चली गई, तो सेम मीडियम में वापस चली गई. सो इट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड थिंग जो हमने देखा, a part of the incident light is transmitted into the second medium along a change direction. तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ पार्ट ऑफ द लाइट क्या हुआ, अंदर चला गया, पानी के अंदर चला गया, बट अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन इट्स पाथ, हल्का सा टेढ़ा हो गया, हल्का सा उसका पाथ चेंज हो गया. आई विल बी टेलिंग यू हाउ एंड व्हेन. ठीक है, बट यहाँ पे उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. जब क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चले जाती है एंड इट चेंजेस इट्स पाथ बाय लिटिल बिट, यू कैन से. ठीक है, थर्ड फिनोमेना जो एक्चुअली में यहाँ पे हो रहा होता है वो है, द रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सेकेंड मीडियम. दिस फिनोमेना इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. तो कुछ पार्ट ऑफ द लाइट, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो उस सेकेंड मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. सो देयर आर 3 phenomena whenever light goes or try to go into the second medium from the first one. So there are 3 phenomena that happens right over there. All right. So this is the things, these are known as the basics of light. ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने अभी स्टडी करी हैं. It's all in this lecture. All right. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.